बच्चे, चलिए हम हमारे नए पाठ की शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना के साथ शुरू करें। हम सब अपने आंखें बंद करें, हाथ जोड़ें और प्रभु यीशु से हम एक क्षण मौन रूप से प्रार्थना करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु बच्चे, हम आज हमारे 11वें पाठ की ओर बढ़ रहे हैं। हमारे 11वें पाठ का नाम है ईसा लोगों का सद्गुरु। ईसा मसीह जहाँ कहीं भी जाते थे वहाँ लोग उनके पीछे हो जाते थे, क्योंकि लोगों को यीशु मसीह की बातें सुनने में बहुत अच्छा लगता था। तो एक दिन ऐसा हुआ जब ईसा मसीह रास्ते से होकर जा रहे थे, उनके पीछे एक भीड़ के लोग आने लगे। तो ईसा मसीह ने क्या किया, उन्होंने जाकर एक पहाड़ पे चढ़कर वहां पर बैठ गए और सब लोग आके उनके चारों ओर बैठ गए। तो उनमें से बहुत सारे गरीब लोग थे, बहुत सारे दुखी लोग थे। तो इन सब का हालत देखकर यीशु मसीह को तरस आया उनके ऊपर। तो उन्होंने लोगों को शिक्षा देने लगे। क्या आप सबको वीडियो देखने में अच्छा लगता है? तो चलिए हम ईसा मसीह के इस वचन को एक छोटा सा वीडियो द्वारा सुनेंगे। Day. So, today's story is about the lessons Jesus taught to the people. Jesus taught people ways to know God better and live for Him. It was important that people learned to obey God and that their faith in Him was true. Jesus taught important lessons and often explained them with stories so that people understood His lessons better. He didn't bother much about the religious Jewish leaders because they thought that they knew everything. Huge crowds of people followed Jesus everywhere He went. One day, He took them on top of a mountain and taught them the lesson of God's blessings and how He blesses the one who thinks about others before thinking about his own self. He also preached for peace and taught them how to stand up for their faith and belief in God. He said, "Your faith in God is like salt that adds flavor to the food or preserves the food for a long time. It is like a bright shining light in the darkness. So don't cover the light and fill the room with darkness. Instead, let the light shine, just like your faith in God, and let others see it." Jesus gave lessons about anger to people. He taught them how important it is to control anger and how angry people are judged by God. He said, "If you feel you are angry with someone, or someone is angry with you, quickly speak with him and settle matters before it gets too late. Take care of your anger problems, and God will always be with you." Jesus taught people about being pure and keeping promises. One important lesson He gave was about not taking revenge against people who hurt you. Many people in those days believed an eye for an eye, but Jesus taught them otherwise. He said, "Don't seek revenge. Love your enemies as much as you love your friend. If a person truly has God's love in his heart, he will not seek revenge, but love the person with all his heart. Leave all revenge to God. That is real love."
One important lesson Jesus taught in this sermon was about taking care of the poor. It is important to help those who are needy. But Jesus said, It is important that you help people privately and not in front of others, just so वीडियो देखने में अच्छा लगा? तो आपको कुछ समझा क्या वीडियो देखने के बाद? तो मैं भी आप लोगों को कुछ बता के देती हूँ उसके बारे में। ईसा मसीह पहाड़ पर बैठकर उन्होंने उन लोगों को यह सिखाते रहे कि धन्य है वे जो मन के दीनहीन हैं, उनको स्वर्ग राज्य मिलेगा। धन्य है वे जो दयावान है, उन्हें ईश्वर की दया प्राप्त होगी। धन्य है वे जो धर्म के कार्य करते हैं, उनको भी स्वर्ग राज्य मिलेगा। और धन्य है वे जिनका हृदय निर्मल है, वो ईश्वर का दर्शन करेंगे। ये सब बातें ईसा मसीह जो कुछ लोगों को सिखाया, जो कुछ लोगों को सीख दिया, उन सब को सब एक साथ मिलके हम आशीर्वचन कहते हैं। तो इस आशीर्वचन हमें संत मत्ती के अनुसार सुसमाचार अध्याय 5 वचन संख्या 3 से 12 में देखने को मिलता है। इसके अलावा प्रभु यीशु ने शिष्यों को और कई बातें सिखाई और उन्होंने यह बताया कि अपने मित्रों को प्यार करो। इतना ही नहीं बल्कि अपने शत्रुओं से भी प्यार करो। जो हमें सताते हैं हम उनको भी सताना नहीं चाहिए बल्कि उन्हें माफ़ी देना चाहिए। इसके बारे में प्रभु ईसा मसीह हमें सिखाते हैं संत मत्ती अध्याय 5 वचन संख्या 39 में। यदि कोई तुम्हारा एक गाल पर मारे तो दूसरा गाल भी उनके सामने कर दो। क्या आप सब जन ऐसे करते हैं? कोई आपके एक गाल में मारने से दूसरा भी उनके सामने करते हैं कि पीछे मुड़ के 2 गाल पे उनको मारते हैं? हाँ, ईसा मसीह ने हमको ऐसा नहीं सिखाया। प्रभु यीशु ने हमें ये सिखाया, जो भी हमें तकलीफ देते हैं, जो भी हमें दुख देते हैं, जो भी हमें मारते हैं, हम उनको क्या करना चाहिए? उन्हें हमारा हृदय से क्षमा देना चाहिए। एक दिन यीशु मसीह के शिष्य लोग आकर, गुरुवर हमें भी प्रार्थना करना सिखाइए, यह कहकर उनसे विनती की। तो प्रभु यीशु ने शिष्य लोगों को एक विशिष्ट प्रार्थना सिखाई। वो है, हे हमारे पिता। इसे हम प्रभु की विनती भी कहते हैं। क्या आप सबको ये हमारे पिता का प्रार्थना मालूम है? तो मालूम नहीं है तो क्या करना है? सीखना है। तो चलिए बच्चे, हम कुछ भी बातें लेकर कभी भी चिंतित नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें हमेशा पिता परमेश्वर के अनंत परिपालन पर विश्वास रखनी चाहिए। यीशु मसीह यह भी बताए, आकाश के पक्षियों को पालन करने वाले, खेत की घास का संरक्षण करने वाले हमारे प्रेमी पिता हम मनुष्यों को भी हर पल संभालते हैं। इस प्रकार का सुसमाचार हमारे प्रेमी सद्गुरु हमारे प्रभु ईसा मसीह लोगों को सिखाया। यीशु मसीह ने जो कुछ बातें हमें सिखाई, जो कार्य हमारे लिए किए, वो सब के सब हमें कहाँ देखने को मिलता है? बाइबल में। बाइबल के द्वारा ही यीशु मसीह हमेशा हमारे साथ बातें करते हैं। तो बच्चे, इसलिए ये जरूरी है हमें हर दिन बाइबल पढ़नी चाहिए। तो जैसे कि हमेशा मैं आप लोगों को एक होमवर्क देती थी, आज भी मैं आप लोगों को 2 होमवर्क देती, छोटा छोटा। तो एक ये डिसीजन लेंगे आज से मैं मतलब आप हर एक जन बाइबल के कम से कम एक छोटा सा भाग तक भी पढ़े बिना सोने नहीं जाऊंगा या सोने नहीं जाऊंगी, है ना? बाइबल पढ़ना आवश्यक है, क्योंकि बाइबल के द्वारा ही यीशु मसीह हमारे साथ बातें करते हैं। क्या आप लोगों को यीशु के साथ बातें करने अच्छा नहीं लगता है? जरूर अच्छा लगता है ना? तो इसलिए अगर हमें यीशु के साथ दोस्ती करना है तो क्या करना चाहिए? उनके बातें सुनना चाहिए। कैसे सुनेंगे? वचन से। वचन कहाँ है? बाइबल में है। तो हमें क्या करना चाहिए? हर दिन बाइबल पढ़ना चाहिए। अगर हमें बाइबल पढ़ने को मुश्किल है तो हमें क्या करना चाहिए? बड़ों की मदद से पढ़ना चाहिए, है ना?
तो एक और छोटा सा होमवर्क भी है। आज से लेके अगले क्लास तक जितना भी दिन आपको मिलता है, उन दिनों में हर दिन एक एक छोटा छोटा वचन को आप लोग सीखना है, जीवन में अपनाने को कोशिश करना है और सीखकर जो कुछ वचन आपने सीखा है वो दूसरों को सुनाना है। ठीक है? मैं विश्वास करती हूँ मैं जो कुछ बताई मेरे बच्चे अच्छे से उसका फॉलो करते हैं, है ना? विश्वास करूँ? तो चलिए बच्चे, आज हमारे क्लास का समाप्त होने का समय आ गया है, तो इसलिए हम त्रिएक ईश्वर को धन्यवाद देते हुए, उनकी स्तुति करते हुए हमारे क्लास को समाप्त करेंगे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वो आदि में थी, अब और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। जय यीशु बच्चे।